Hello everyone, welcome to the Manula classes. In the session of daily news analysis, today is 19th of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. First of all, we are going to revise our previous session with the help of MCQs. So guys, try to answer these questions before I provide you the correct answer. So just start with the first question. This question is regarding Green Credit Program. You can recall that in yesterday's session and last session we discussed about the Green Credit Program. So what is the aim of this program? क्या इस program का aim है? So it is regarding green energy production, restoration of ecosystem या promotion of electric transportation. Guys, actually the correct answer of this question is restoration of ecosystem. Recently, the government of India came with some new instructions that the companies or departments which are working in the forest lands, and if they have destroyed any trees or ecosystem, then it is the responsibility of every department and the organization that it should or all the organizations must effort to restore the ecosystem. और उसके लिए वेरियस एफर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है लाइक प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, shrubs and other biodiversity. So this was in news due to such reasons. The next question is question number 2. What do you mean by CSR? In yesterday's session we discussed about this point also when we were discussing about the green credit program. It is regarding the computer science representation or corporate social responsibility or corporation of science revitalization or none of the above. The correct answer is corporate social responsibility. You know, yesterday in the last session we discussed that CSR is a concept where the corporate organizations, industries, they have some responsibility toward the society, because every organization which is working for the profit motive using the resources of the society, because no company is the full owner of this land, because this land, these resources belongs to everyone. So every corporate, every industry has some responsibility towards the society, and they should fulfill that or those responsibilities in different manners, like promoting some educational work by providing the funding. They should promote some reforestation of the lands by providing funding and technological helps. Yesterday I also discussed about the IOC, Indian Oil Corporation, which provide the corporate social responsibility in the forms of making construction of roads, means free hospitals in the nearby regions. So this was the correct option. Find incorrect statement. Yesterday we discussed some points regarding the NCT of Delhi, National Capital Territory of Delhi, because uh, the arrest of Arvind Kejriwal, that is the CM of Delhi, the NCT of Delhi is currently in the limelight. So you should know some basic facts or concepts regarding this National Capital Territory of Delhi. First option is, and first of all, you should be very cautious while selecting the statements. Then you should be focused on such kind of directive words. ऐसे जो directive words means यहाँ बात कर रहा है ये incorrect word, incorrect statement की. So be cautious. Don't misunderstand that it is asking about correct statement. So here it is asking about the incorrect statement. The first statement is 69th Constitutional Amendment Act 1991 is associated with the NCT of Delhi. Yes, this is the correct option, because this through this amendment there were some provisions introduced in the Constitution of India to manage the capital territory of Delhi. Option B, Article 239 AA.
of the Indian Constitution is associated with the NCT of Delhi. Yes, through this Constitution amendment, provision of Article 239AA was introduced in 1991 through the Constitutional Amendment Act. So this option is also correct. So this article has the provisions regarding the NCT of Delhi. Option C. The Legislative Assembly of Delhi cannot legislate on the following three subjects: police, public order, and land. This statement is also correct because National Capital Territory is a kind of union territory with some special powers with Legislative Assembly. But it should be very clear in your mind that National Capital Territory government does not have powers regarding police, public order, and land. These subjects are under the powers of the Lieutenant Governor, or we can say that it is indirectly under the central government. Such issues are decided by the central government indirectly, although they are decided by the Lieutenant Governor. But ultimately, if we think politically, then they are decided by the central government. Now, option D. The Chief Minister of NCT of Delhi have the direct control of Delhi Police? No. Delhi Police जो है चीफ मिनिस्टर के अंडर में नहीं आती है, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है. So that's why this is the incorrect option. So now we are moving another question. Question number 4. Question number 4 asks that what is the full form of AIIMS? Yesterday we discussed about AIIMS. And we also discussed a case study of AIIMS that was inaugurated in Madurai district of Tamil Nadu. And it is not under proper functioning, and there were around 150 students who were transferred to the nearby district hospital to complete their MBBS. Okay, so this was in news. So what is the full form of AIIMS? So All India Institute of Medical Sciences, this is the correct full form of this AIIMS. Next question is regarding Sakshi Malik. Okay, yesterday we discussed about this, that Sakshi Malik का नेम आया है टाइम्स की मैगजीन में. You know कि every year जो टाइम है, टाइम की एक मैगजीन आती है जिसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज का उसमें नेम होता है. तो here you have to find out the profession of Sakshi Malik. She is whether a cricketer, फुटबॉलर और रेसलर. क्या है ये? तो साक्षी मलिक जो है एक रेसलर है, प्रोफेशनल रेसलर है, और ये न्यूज में रही थी रिसेंटली. जो ब्रजभूषण शरण सिंह जब जो है उनका मैटर आया था कि जो ओलंपिक्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं और उनके साथ में कुछ इश्यूज थे, मोलेस्टेशन वगैरह से, सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड इश्यूज थे, तब भी ये लाइमलाइट में रही थी. तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज में रही. तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए टाइम्स मैगजीन जो है उन्होंने इनको जो है अपनी मैगजीन में लिस्ट में नाम इनका रखा है. तो हियर यू हैव टू नो वन मोर थिंग अबाउट दिस. द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर. ऐसी कौन फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर थी टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स? तो फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में, वो भी किसमें? रेसलिंग में, कुश्ती में, किसने ओलंपिक्स में मेडल फर्स्ट टाइम जो है अचीव किया था? तो इट वाज ऑफ कोर्स साक्षी मलिक. तो ये काफी पॉपुलर रेसलर हैं इंडिया में, हालांकि इन्होंने अभी रिजाइन कर रखा है जो है रेसलिंग से, प्रोफेशनल रेसलिंग से. नेक्स्ट, टाइम्स मैगजीन हैज इट्स हेडक्वार्टर्स. व्हेन द टाइम्स मैगजीन इज इन limelight, then you should also know some basic about this magazine, because वर्ल्ड में काफी इसका एक फेमस नेम है ये टाइम्स की मैगजीन जो आती है एवरी ईयर. सो इसका हेडक्वार्टर्स है कहां पर? न्यूयॉर्क में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जेनी हर्मोसो? बिकॉज इनका भी नेम टाइम्स की मैगजीन में आया है और ये भी एक लेडी है और काफी पॉपुलर ये रही है इन्फ्लुएंशियल के मामले में. सो शी इज, कौन है ये? अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये किस जो है प्रोफेशन से रिलेटेड है. तो शी इज अ फुटबॉलर. तो ये एक फुटबॉलर हैं और काफी पॉपुलर हैं. तो व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ जेनी हर्मोसो? तो ये किस कंट्री की है? ये स्पेनिश हैं या फ्रेंच हैं या ब्रिटिश हैं या रशियन हैं? तो शी बिलोंग्स टू स्पेन. सो दैट्स व्हाई हर नेशनैलिटी इज स्पेन.
कैन यू टेल मी द कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन? स्पेन की आपको कैपिटल सिटी यहाँ पे बतानी है कमेंट बॉक्स में. So these were the questions to revise the previous day session. Now we are moving towards the another section, that is today's current affairs. So now just start with the first. There have been a case against the EVMs, that is electronic voting machines, and the case was filed against the EVMs, and there were allegations that जो EVMs हैं वो टैंपर हो सकती हैं, उनमें एरर्स हो सकते हैं और अपनी चॉइस के कैंडिडेट को इसमें डेलिबरेटली वोटिंग करवाई जा सकती है. तो अब इसमें हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है इसकी लिसनिंग चली, काफी लंबे समय तक इसकी जो है प्रोसीडिंग्स चली, और अभी रिसेंट आने वाले टाइम में अराउंड 97 करोड़ जो वोटर्स हैं वो वोट करने वाले हैं. ठीक है, और 19 अप्रैल इट मीन्स आज से वोटिंग हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है फॉर द लोकसभा इलेक्शंस. ठीक है, तो अब ये जो केस था उस पर डिसीजन कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया अपना. हालांकि अभी फाइनल वर्डिक्ट तो इसमें नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया. व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? सो इन दिस ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता, उन्होंने कहा ये जो पिटिशनर्स थे इनको ये कहा कि देखो भाई ठीक है, आप केसेस फाइल कर सकते हैं, आप जो है इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आ सकते हैं, बट इट वाज नॉट गुड टू बी ओवर सस्पिशियस अबाउट एवरीथिंग. इन्होंने कहा कि ठीक है आप शक कीजिए, लेकिन ओवर सस्पिशियस मींस बहुत अतिका अगर आप शक करते हैं, ओवर सस्पिशन अगर आप एवरीथिंग पर करते हैं तो ये ठीक नहीं है. तो आप ये नहीं कि छोटी छोटी चीजों को लेकर के और हर एक बात में मींस जो है सस्पिशियस अपने मेंटेलिटी को हर जगह पर शो करें. तो उन्होंने इनको जो है इस तरह का सजेशन भी दिया, और काफी लंबे समय के बाद इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये कहा. और वहीं पर जो एडवोकेट प्रशांत भूषण है, सीनियर एडवोकेट, दूसरे एक और गोपाल शंकर नारायण, वो भी जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने PIL फाइल कर रखी थी वो थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. ठीक है, तो उनकी तरफ से ये भी कर रहे थे, जो है प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे. ठीक है, कोर्ट ने हियर किया कि भाई इनका कहना क्या था. ये जो पिटिशनर थे वो ये कह रहे थे कि जितने भी मींस EVMs हैं, एवरी EVM में क्या होना चाहिए, VVPAT होना चाहिए, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल. बोला एक स्लिप निकले, जैसे ATM वगैरह हम जाते हैं तो वहां पर हमारा जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका एक स्लिप निकल करके आती है और उसमें दिखता है, सारी डिटेल्स उसमें होती हैं. तो इनका कहना था कि VVPAT में ही आप ऐसा ही कुछ लेकर के आइए और उसमें 100% वोटिंग मशीन्स में ये VVPAT लेकर के आइए. अब आप खुद सोचिए, इतनी लाखों करोड़ मशीन्स हैं, उन मशीन्स में अचानक से इतने कम टाइम में हम सारा का सारा VVPAT कैसे जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. भाई सबसे पहले तो उतनी हमारे पास में स्टॉक में होनी भी तो चाहिए उतनी मशीन्स. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस आती हैं जो ऐसे इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉब्लम में क्रिएट करती हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर इशू, दैट इज ED सेज. अभी ED का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईटिंग मैंगोज स्वीट्स, और जबकि आप जो आम आदमी पार्टी है उसको इसमें स्मेल आ रही है किसकी, कॉन्स्पिरेसी टू किल हिम. यहाँ पर ये हालांकि एक पॉलिटिकल न्यूज है, बट आपके लिए काफी कुछ चीजें समझने की हो सकती हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम सच काइंड ऑफ न्यूज दैट व्हाट कैन बी हैपन व्हेन पॉलिटिक्स एंटर इन द सीन. तो जब पॉलिटिक्स एंटर कर जाती है किसी सीन में तो फिर वहां पर कुछ भी पॉसिबल हो जाता है. यू नो कि जो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं तो उनको टाइप 2 डायबिटीज है. टाइप 2 डायबिटीज मीन्स उनको जो शुगर की प्रॉब्लम है वो काफी बड़े लेवल की होती है, और डेली ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन की डोज देनी होती है जो कि शुगर को कंट्रोल करते हैं. तो यहाँ एक तो आपको इंसुलिन क्या है, कल हम इस पर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि व्हाट इज इंसुलिन. हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब डायबिटीज होती है तो उसमें इंसुलिन का क्या रोल होता है. ठीक है, क्योंकि एक बड़ा इशू इन्होंने बना दिया है किसको, डायबिटीज को. अब यहाँ पर कहने का इनका जो मेन पर्पज क्या है कि अरविंद केजरीवाल साहब लगा रहे हैं लगातार बेल के लिए एप्लीकेशंस, और ही ऑल्सो वांटेड टू शिफ्ट
फ्रॉम जेल टू अनदर प्लेस। ठीक है, अब इन पर एलिगेशन क्या लगा रहा है, ईडी का जो कहना है, ईडी के ऑफिसर्स का जो उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका कहना है कि केजरीवाल साहब जबरदस्ती डेली खूब सारी स्वीट्स खा रहे हैं, मैंगोज खा रहे हैं, जबरदस्त जो मी शुगर वाली जो चाय है उसको पी रहे हैं, जिससे कि उनकी तबीयत जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो डिटोरिएट हो जाए, बहुत ज्यादा खराब हो जाए, और उसकी वजह से फिर उनको हेल्थ ग्राउंड पर क्या मिल जाएगी, बेल मिल जाए। तो उसको वो जानबूझ करके ऐसे फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ये इस वाले मैटर में। तो यहाँ से हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कल के क्वेश्चंस में, एक तो डायबिटीज, इंसुलिन। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी तो फिर इसमें बाकी सारी जो चीजें हैं कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी वगैरह, इसमें से हमारे मतलब का कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, हालांकि इसमें वही वाली बात है कि आलू पूड़ी खा रहे हैं, वो ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो सब फिर हमारे मतलब का नहीं। एक पॉइंट यहाँ पर है कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, वीके सक्सेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, और द टॉपिक इज एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। क्या है ये इशू, वॉर ऑफ एट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय वॉर ऑफ एट्रिशन? देखो, वॉर ऑफ जो एट्रिशन होता है उसमें ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है, सपोज करो देयर आर टू पार्टीज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो अब एक तरफ है ए और एक तरफ है बी, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। तो इन सच सिचुएशन क्या होता है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग पार्टी अनोदर पार्टी के अगेंस्ट में इस तरह से अटैक्स प्लान करती है कि बी जो पार्टी है उसकी ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज हो, उसके पास जो वेपन्स हो वो मींस डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स जो है डेथ उनकी हो जाए, उनको किल कर दिया जाए। तो उनके पास में जो सोल्जर्स हैं और वेपन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली द चांसेस टू बिकम विक्टर जो है क्रिएट हो जाते हैं किसी अनदर पार्टी के लिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सीन लिया है किसका, जो माओइस्ट मूवमेंट इंडिया में चलते रहते हैं। एक्चुअली दीज आर नॉट मूवमेंट्स बट दीज आर some kind of terrorist activities or violent activities. So now start with the first from this. A long standing जो है insurgency that peaked in the early 20s. जब अर्ली 20s में जो इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी तो माओइस्ट जो आइडियोलॉजी है वो बड़े लेवल पर हमको देखने को मिली। बट इन रिसेंट ईयर्स जैसा हम देख रहे हैं कि जो माओइस्ट एक्टिविटीज है, ये माओइस्ट एक्टिविटीज क्या है, इनको भी थोड़ा समझ लीजिए आप। कि माओ जेडुंग एक लीडर थे चाइना के, और उनकी एक आइडियोलॉजी थी दैट पावर अराइजेस फ्रॉम द बैरल्स ऑफ द गन। गन के बैरल से, बंदूक की नाल से सत्ता निकलती है। इट मींस दिस आइडियोलॉजी बिलीव्स इन वायलेंस। ठीक है, तो इन्हीं की आइडियोलॉजी पर इंडिया में जो आप कई बार सुनते होंगे नक्सलिज्म। नक्सलिज्म एक नक्सलवाड़ी विलेज हुआ करता था वेस्ट बंगाल में, तो वहां से स्टार्ट हुआ नक्सलिज्म। एक्चुअली नक्सलिज्म ही माओइज्म है, और इसी पॉइंट को, इसी आइडियोलॉजी को लेकर के ये वर्क करते हैं। इन द रिसेंट ईयर्स वी आर एक्सपीरियंसिंग सम डाउनफॉल इन द नक्सलाइट्स और द नक्सल एक्टिविटीज, बिकॉज जो इंडियन फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, दे आर कंटिन्यूसली फाइटिंग अगेंस्ट द माओइस्ट एंड दे आर किलिंग देयर लीडर्स and their soldiers, and this action has been described as war of attrition in this editorial. So what are the concerns? अभी तक के जो इसमें कंसर्न्स है वो ये है कि जब भी हम ऐसे किसी सिचुएशंस में विक्ट्री चाहते हैं, कोई भी फोर्सेस हैं जब वो विक्ट्री चाहती है तो उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, जब भी हम फोर्सेस की बात करते हैं, आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, तो हमें एक ही चीज दिखाई पड़ती है, वेपन्स। कि हम वेपन्स के दम पर किसी ऐसे नक्सलाइट जो आइडियोलॉजी है, माओइस्ट एक्टिविटीज हैं, उन सबको हम फिनिश कर सकते हैं। बट फ्रॉम द रीसेंट एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो इन द लॉन्ग टर्म्स और एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस मल्टी डिकेड्स, बहुत सारे डिकेड्स के अगर हम एक्सपीरियंस लें तो इट कैन बी डिडक्टेड, it can be concluded that only with the weapons, with the violence, you cannot defeat an ideology. Because जो माओइस्ट हैं, जो नक्सलिस्ट हैं,
वो केवल कुछ एक्शन नहीं है, कुछ पीपल नहीं है, बट इट इज एन आइडियोलॉजी। एंड यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एन आइडियोलॉजी थ्रू बुलेट्स, थ्रू फायरिंग, थ्रू शॉट डाउन देयर पीपल, थ्रू फायरिंग फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स। मीन्स जो आइडियोलॉजी है उसको आप आइडियोलॉजी से ही डिफीट कर सकते हैं, आप बंदूक से, गोलियों से, बुलेट से उसको डिफीट नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट इज द नीड? दैट वी शुड use a multi-pronged strategy, means use one side the weapons to kill such people, those need to be killed, and at the same time there should be some strategies like we should promote the welfare state, means एक तरफ आप आर्म्ड फोर्सेस का यूज करें उनके अगेंस्ट में ऑपरेशंस करने के लिए, बट आपको वेलफेयर स्टेट का भी यूज करना होगा, बिकॉज जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन्स हैं जहां पर अभी स्टेट नहीं पहुंचा है, जहां पर जो ट्राइबल पीपल रहते हैं उनके साथ में स्टेट मींस गवर्नमेंट का अभी भी कांटेक्ट नहीं है, और जिन ट्राइबल पीपल के साथ में गवर्नमेंट का कांटेक्ट नहीं है उन तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं पहुंच रही हैं, वहां तक पुलिस की जो पॉलिसीज हैं या पुलिस की हेल्प है वो नहीं पहुंच रही है। तो इन सच केसेस क्या होता है कि जो माओइस्ट होते हैं, इंसर्जेंट होते हैं, उनको यूज करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको फिर वो भड़काते हैं, इंस्टिगेट करते हैं पीपल के जो है फोर्सेस के अगेंस्ट में। तो अभी तक का जो सिनेरियो है नक्सलाइट्स वाली बेल्ट्स का, उसमें जो पुलिस फोर्सेस होती हैं उनके अगेंस्ट में ऐसी आइडियोलॉजी बना रखी है कि जो पुलिस फोर्सेस है वो सब आपकी क्या है, एनिमी है, दुश्मन है। तो उनको देखते ही कई बार उन पर अटैक होते हैं और उनकी हेल्प कोई नहीं करता। मींस वहां के जो लोकल पीपल होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, वो एक टू टाइप्स के मींस सिचुएशंस के बीच में फंसे रहते हैं। क्या फंसे रहते हैं? अगर वो पुलिस फोर्सेस की, आर्म फोर्सेस की हेल्प करें तो रात में नक्सलाइट्स वहां पर आते हैं और उनको मार डालते हैं। अच्छा, अगर वो पुलिस फोर्सेस की हेल्प ना करें तो अगेन फिर क्या होता है, जो पुलिस फोर्सेस के ऑफिसर्स या जवान्स होते हैं कई बार वो फिर उनको क्या करते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं या उनको टॉर्चर करते हैं। तो दोनों ही साइड से उनके साथ में प्रॉब्लम उनको फेस करनी होती है। यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर करना होगा कि जो पुलिस फोर्सेस हैं उनका यूज किया जाए, बट जो कॉमन पीपल हैं, ट्राइबल पीपल हैं, जो उन रीजन्स में रह रहे हैं, उन तक इंडिया की गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो पहुंचे। लाइक उन तक राशन कार्ड्स पहुंचे, उन तक क्लोथ्स पहुंचे, उनके साथ जो है फॉर्मल एजुकेशन वहां पर मिलनी चाहिए, उनको मेडिसिन मिलनी चाहिए। मीन्स उनको गवर्नमेंट के साथ आपको कनेक्ट करना होगा। केवल बुलेट के दम पर हम उनको फायर या उनसे फाइट नहीं कर सकते। तो अब उसमें क्या हुआ, जब हमने काफी समय तक बुलेट्स वगैरह इनसे फायर किया, हमने सलवा जुडूम जैसे सिस्टम भी तैयार किए, लेकिन वो बैकफायर कर गए। आपको पता होगा कि सलवा जुडूम में कैसा सिस्टम तैयार किया था गवर्नमेंट ने उस टाइम पे, कि जो लोकल पीपल थे, वहां के ट्राइबल पीपल थे, उनको वेपन्स दे दिए कि ये लो भैया वेपन, ये को लो AK-47 राइफल, और माओइस्ट के अगेंस्ट में आप भी खड़े हो जाओ, आप लड़ो। अब आप घर घर में अगर हथियार बांट देंगे, वेपन्स बांट देंगे विदाउट एनी प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो उसका रिजल्ट फिर होगा क्या? ब्रूटल किलिंग्स। तो अगर अब हुआ क्या, यही काम कहां पर हुआ? सलवा जुडूम का हुआ। बिकॉज यहाँ जो यूथ था उनको इन्होंने क्या दे दी थी? राइफल्स, एम्यूनिशन, ये सब बांट दिया। अब जब हाथ में इनके बंदूक आ गई तो इन्होंने माओइस्ट के अगेंस्ट में लड़ते लड़ते क्या कर लिया कि जो सोसाइटी के पुअर पीपल थे उनकी जमीन हड़प ली, उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर दी, उनको मींस जो है उनके साथ में वायलेंस किया। बाद में फिर इसको गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा, और रिसेंटली अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसको भी सामने आना पड़ा और रिपोर्ट मांगी है सारी स्टेट गवर्नमेंट से जहां जहां पर सलवा जुडूम ने काम किया था, कि आप दो कि ये सलवा जुडूम के जो लोग थे उन्होंने किन किन लोगों की किलिंग्स की थी, उन सबकी डिटेल हमको दीजिए, जिससे कि हम उनको कुछ कंपेंसेट कर सकें। तो ये सिचुएशन अभी तक इनकी रही। अब इनका यहाँ पर इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि बहुत सारे सिचुएशंस में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं, अब वो आकर के वहाँ के लोकल पीपल का सपोर्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम कई बार ऐसा होता है कि जो पुलिस फोर्सेस होती हैं उनके जवान जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, कई बार वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन होती है, लोकल पीपल होते हैं, उनके साथ में वो मिसबिहेव करते हैं। अब यही वाले पॉइंट्स
मिल जाते हैं उन माओइस्ट को। ये देखो आपकी तो जो है आपके साथ में तो हमेशा ये मिसबिहेव करते हैं, ये फोर्सेस के जवान जो होते हैं, तो ये तो आपके दुश्मन है, आप हमारा साथ इसमें दीजिए। और एक्चुअली ऐसा कई बार होता भी है। मैं अभी अपने अगर एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो इन नक्सलाइट ऑपरेशंस में मैंने भी सर्व किया है और उन जंगलों में हम भी देखे हैं, तो वहाँ की जो लोकल पीपल होते हैं उनकी कंडीशन बहुत खराब है। उस समय अगर हम देखें तो वहाँ आप अगर आप उनको पार्ले जी बिस्किट का पैकेट उनके बच्चों को दो, उनको समझ में नहीं आता था कि ये बिस्किट है कि क्या है। वहाँ दूर दूर तक पुलिस स्टेशन नहीं है। वो बच्चे, उनको नहीं पता कि एजुकेशन जैसी भी कोई चीज होती है। झोपड़ी हट्स बना करके रहते हैं, 4 मुर्गी हैं उनकी झोपड़ी में, ठीक है, पेड़ पर रह रहे हैं। ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके साथ में कई बार उनकी जो संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको भी छीन लेते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस वाले। कुछ बदतमीज लोग हर जगह पर होते हैं। अब इन्हीं बदतमीजियों का फायदा उठाते हैं माओइस्ट और लोगों को भड़काते हैं उनके अगेंस्ट में, सरकार के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और फिर उन्हीं का एक्सप्लॉइटेशन यूज होता है और फिर वोटिंग वगैरह ये सब उसमें उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। So in this article, the main focus was that only bullets are not sufficient to defeat such ideology which is based on violence. But we have to promote the welfare state, and the state should reach to these people to solve the problem of Naxalism. तो इसको भी हमें आगे करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास में एक और इम्पोर्टेंट है, फिर हम इसको एंड की तरफ चलेंगे कि अभी तक की सिचुएशन अगर हम बात करें तो बिकॉज द लोकसभा इलेक्शंस जो है अभी हमारे पास में इंडिया में अभी कंटिन्यूस है, 19 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ये देखिए कि कैसे हम फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करा सकते हैं जब अभी तक जो टाइम है 18 अप्रैल तक की, 17 अप्रैल तक की अगर हम बात करें तो 1300 करोड़ रुपीस जो कैश है वो अभी तक हम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीज कर चुका है। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये कैश जो है किसी मंदिर में बांटने के लिए तो नहीं होगा, किसी मस्जिद में बांटने के लिए तो नहीं होगा। ये किसके लिए था? ये कैश होता है वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वो कैश यूज होता है किसी को दारू शराब पिलाने के लिए। ठीक है, तो आप ये सिचुएशन देख सकते हैं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि इंडिया में पैसे की कमी है, लेकिन यहाँ देखने से लगता है कि इतना सारा कैश गवर्नमेंट की ऑफिसर्स ने सीज किया है और लोग उसको क्लेम भी नहीं कर रहे कि ये मेरा है, और छोड़ छोड़ करके उस कैश को भाग जाते हैं। कार की पूरी डिग्गी भरी होती है नोटों से, बोरियां भरी होती है, उनको छोड़ करके भाग जाते हैं। तो कहाँ कैश की कमी है? कैश की कमी, जो पैसे की कमी है वो है कॉमन पीपल के साथ में, जो गरीब आदमी उसके पास में पैसे की कमी है। बाकी दूसरी जगह पर पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में इंडोनेशिया की एक न्यूज। वहां का जो वोल्केनो है उसमें हो गया है इरप्शन, और ये बड़े लेवल का है। इसका नाम है माउंट राउंग। ठीक है, जब भी इस तरह के जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं और इसकी जो हाइट बहुत ज्यादा, मींस करीब 2 किलोमीटर हाइट तक इसमें से ब्लास्ट हुए हैं, और वहां के आसपास का जितना भी एयर स्पेस है, फ्लाइट्स वगैरह सब कैंसिल कर दी गई, एयरपोर्ट्स खाली करा लिए गए, पीपल को वहां से इवैक्यूएट करके ले जाया गया। ठीक है, तो इंडोनेशिया में है ये माउंटेन। तो माउंटेन के नेम पूछ ले जाते हैं कई बार, कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि रिसेंटली माउंट रोंग वाज इन न्यूज ड्यू टू ब्लास्ट एज वोल्केनिक इरप्शंस, तो इट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो इस तरह से क्वेश्चंस पहले भी कई बार आए हैं। अब देखो जो इंडोनेशिया है, यहां से आप एक इंफॉर्मेशन देखिए कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इंडोनेशिया कहां पर लोकेटेड है? यह है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। ये क्या है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? मैं अभी आपको इमेज पर दिखा देता हूं, मैप पर, ये आप देख सकते हैं। इसको कहते हैं हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये सारा का सारा रीजन ये प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज के अंडर में आता है, और यहाँ पर मोस्टली इस सारे के सारे रीजन में आपको वोल्केनिक इरप्शंस मिलेंगे, सुनामी मिलेगी, अर्थक्वेक मिलेंगे। तो वर्ल्ड के जो मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स आते हैं या वहां पर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वो सारे के सारे इसी रीजन में होते हैं। मींस अगर मैं बात करूं तो अराउंड 90% जो वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक आते हैं वो इसी रीजन में आते हैं। बाकी सारा का सारा 10% में पूरा वर्ल्ड है। सो दिस रीजन इज नोन एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक मींस यहाँ ये पैसिफिक ओशियन के आसपास में, दैट इज वाई। और रिंग ऑफ फायर मींस यहाँ पर सबसे ज्यादा वोल्केनोज हमको मिलते हैं। तो कल हम डिस्कस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनाएंगे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, वोल्केनो क्या है, इरप्शंस क्या है, टेक्टोनिक प्लेट क्या है। यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए हमारे पास में
हम चलते हैं इसको एंड करने की तरफ. So guys, I hope you enjoyed the session for today, and we are going to end this session. So goodbye, take care.